السلام علیکم. السلام علیکم. جی اطہر صاحب خیریت؟ کیا حالات ہیں صاحب؟ حالات بہت بہتر ہیں، رب کا شکر ہے، احسان ہے اس رب کا. بتائیں آپ کیا اعتراضات ہیں حالات کے اوپر بتاؤ. حالات یہاں گجرات کے بہت بہتر ہیں. اچھا، اللہ کا کرم. بہت اللہ. آپ بہت بتائیں بہت آپ کے یہاں کے حالات حاضرہ کیا ہیں؟ ہمارے یہاں کی تو اللہ کا کرم ہے، بہت اچھے حالات اور بہت بہت کرم ہے اللہ کا. اور باقی کیسے حالات مناظرے وغیرہ کے آپ کے؟ مناظرے وغیرہ چل رہے ہیں تھوڑے. آپ تو مناظرے گجرات ہو صاحب، بہت بڑے جی زبردست مناظر ہو آپ. پرانے مناظر ہو آپ، بہت بڑے. کم سے کم بہت یہ تو پرانے مناظر ہو آپ. نہیں، سوشل میڈیا پر تو کافی عرصہ گزر گیا ہے. جو بات ہے اطہر صاحب، تقریباً 2011-12 سے میں سوشل میڈیا پر اہل سنت، عقائد اہل سنت، نظریات معمولات اہل سنت اور کی یہ دیکھتا صاحب کر رہا آپ ہوں نے تو الحمدللہ. بہت مناظرے کر کے بہت بڑا کام کیا آپ نے. کوشش کر رہے ہیں، بس اللہ قبول فرمائے ہماری اس محنت کو. نہیں تو یہ اہل حدیث وغیرہ نہ جانے کیا کیا گندگی ابھی پھیلا رہے تھے. ابھی تو ایک نئے فتنے چل رہے ہیں. ابھی تو شکیل بن حنیف کا معاملہ چل رہا ہے. شکیل بن حنیف تو تھوڑا سا ہی ہے، بڑھ رہا ہے وہ بھی اطہر صاحب. وہ پیسہ دے توجہ کے دینی پیسہ دے رہا ہے بس. پھر تو بھی اتنا یہ زیادہ نہیں ہے، قادیانی کے مقابلے پھر بھی کم ہے. قادیانی تھوڑے زیادہ ہیں اس سے. ہاں، قادیانی کے مقابل تو کم ہے، لیکن ایک فتنہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہاں اگر ہم متنبع اچھا، نہ مگر کریں عوام کو. اس کے شکیل بن حنیف کے لوگوں کو میں نے دیکھا تو چہرے تو بڑے بھولے بھالے لگتے ہیں. کیا چکر؟ ہاں، ان کے چہرے کو ایسا بنا لیتے ہیں، بڑے معصوم سی شکلیں. کچھ نہ کچھ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارے بھولے بھالے ہی ہیں، سیدھے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کیا کروا رہا ہے. یہ سیدھے سادے ہی ہیں، وہ ان کو دام فریب میں لے کر گمراہ کر رہا ہے وہ اب شکیل ان بن کو حنیف ان مارنے کا لوگوں دل بھی نہیں چاہتا بیچاروں کو. پٹنا وہ تو پٹنا بھی چاہتے ہیں، مارنا نہیں چاہتے لوگ باغ نہیں، زیادہ. مارنا بیکار ہے، مارا نہ جائے. ان کو پیار، محبت، اخلاق و خلوص کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی لیکن جائے. کیا معلوم مارنا، شکیل بن حنیف کا کون سا نیٹ ورک ہے، کہاں سے پھیلا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. یہ بندہ پہلے تو کچھ دن جہاں تک کتابوں میں نظر آتا ہے، سننے کو ملتا ہے، تو کچھ دن یہ تبلیغی جماعت سے وابستہ رہا. ہاں وہی مرکز سے ایسا سنا رہا مرکز سے، جی نظام الدین سے ملا رہا. ہے. اس کے بعد یہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ سے چڑھا. وہ تو ایسا ہے نہیں. یہ ہے. اور ایک مفتی کامران شہزاد ہے. یہ کامران شہزاد کے بارے میں مجھے نہیں پتا. یہ کون ہے؟ یہ ابھی اٹھا ہے پاکستان کا، بہت بڑا. یہ اندر سے بڑا روکھا آدمی. اچھا، اس کے بارے میں کوئی لنک وغیرہ ہو اس کی کوئی اور جو وہ تحقیق میں تو بہت آگے ہے، لیکن وہ سالہ خبیث ہے. ایسا ہے اس تو کی وہ کیا وجہ کہہ رہا ہے ہے؟ کہ وہ تو جیسے وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. جی وہ تو بخاری شریف، مسلم شریف میں حدیث ہے، بہت سی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نبوت مکمل نہیں ہوئی ہے، 46واں جز نبوت کا باقی رہ گیا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے اتنا کہا بڑا یہ تو پیسہ. حدیث، میں نے کہا یہ تو حدیث سے آگے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے انعام ہے امت مسلمہ کے لیے، جی، بشارت ہے. اور یہ پوری امت کے لیے ہے، بشارت. ایک آدمی کے لیے تھوڑی، جی، پوری امت مسلمہ کے لیے، تا قیامت تک کے پوری لیے. تا قیامت کے لیے. بالکل ٹھیک اطہر صاحب. تو اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ابھی نبوت کا 46واں جز باقی رہ گیا. یہ اپنی طرف سے من گھڑت قیاس لگا رہا. بتاؤ. اور بھی کیا؟ بہت سی باتوں پہ وہ حدیثوں کو چیک کرتا ہے. چلو جی. چیک کر رہے، جو حدیثوں کو ہمارے بڑے بڑے علماء چیک کر چکے وہ بتاؤ، بس ختم. بس بات ختم ہو گئی. اپنی طرف سے کیوں چیک کر رہا ہو؟ تم اتنے بڑے عالم تھوڑی ہو. بالکل ٹھیک. ائمہ محدثین نے الحمدللہ پوری چیک کرنے کے بعد، سب کچھ جانچنے پرکھنے کے بعد ہی تو کتابوں میں نقل کیا دوسرے ہے نا. یہ دروز بخاری. ابراہیمی کو بھی چیک کیا اس نے قرآن سے. اللہ اکبر. ارے بتائیں. اس کا درود ابراہیم کے بارے میں آج تک کسی اہل حدیث نے بھی کوئی بات نہیں کی آج تک. کسی نے نہیں کی ہے، کسی بھی مکتبے فکر میں. ہاں تو یہ اس نے چیک کیا، کہا کہ یہ درست ہے. ارے تو کون ہوتا ہے درست کہنے والا؟ کیوں کیا کون ہوتا ہے بھائی؟ تیرے کہنے سے درود شریف کو ہم لوگ درست مانیں گے؟ بالکل ٹھیک. اب بتاؤ، اہل حدیث نے بھی اس بارے میں کبھی نہیں بولا. یہ بول رہا ہے مفتی کامران شہزاد. یہ اس کے بارے میں آپ نے مجھے متنبع کیا. چلو میں اس کے بارے میں تھوڑی نہیں، ریسرچ کرتا ہوں. علم تو ہے، لیکن یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے یا تو امریکن ایجنٹ ہیں یہ لوگ. ایجنٹ ہی کم نہیں، امریکن ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں. ایجنٹ. اطہر صاحب دیکھیں، یہ جتنے بھی اسلامی دشمن ممالک ہیں نا، ہاں
ये लोग अपनी फंडिंग से इन लोगों को ये अरबी वगैरह की तालीम दिलाते हैं, खुद मदरसों में रख के मुस्लिम शक्ल सूरत में नाम तब्दील कर हमारे इदारों में तालीम याफ्ता कराते हैं ये, हाँ फिर इस्लाम के खिलाफ इनसे काम लेते हैं। बिल्कुल ये चीज हमें माननी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, सही है। समझ नहीं रहे हैं वो तारिक मसूद भी कनाडा गया था ना, हाँ वो कनाडा में हो थे, सकता उनका दौरा है था कि कनाडा में। लंबी रकम मिल गई हो कनाडा में उसको, बहुत लंबी थोड़ी, करोड़ों से भी ऊपर। हो सकता है। अब देखें ना नहीं कोई तारिक मसूद साहब के उस नहीं, बयान अब पर। ये बताओ कि अभी तक ये बात थी कि तौरे ज़बूर इंजील में तरमीम कर दी गई है, ये भी आसमानी किताबें हैं। अब हाँ बिल्कुल कुरान जो है तौरात कि महफूज है, तो बिल्कुल। अब इसके जरिए बात करवाई गई हो सकता है कि तुम ऐसी बात कह दो तो हमें मौका मिल जाएगा, बाद में तुम तौबा भी कर लेना, पब्लिक को बेवकूफ़ बना देना। तो इनकी तौबा पर तो मैंने खुद ट्वीट पढ़े हैं, मैं बताऊं अतर साहब, मैंने साजिद खान नक्शबंदी जो हैं, इनके बहुत बड़े मुनाजिर हैं, हाँ उनकी पोस्ट आप फेसबुक पर देख लें, उन्होंने भी तरदीद की है तारिक मसूद साहब के बयान की। अरे मुफ्ती और आजम अमरीका जो है मुफ्ती मुनीर अखून साहब, हाँ, मुझे अखून साहब का भी मैंने ट्वीट पढ़ा है जी, बिल्कुल उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरदीद की है। नहीं उन्होंने तो साफ शादी का कहा है हुक्म कि लगाया उन्होंने। इसे शहादतें पढ़ना चाहिए, 4 बीवियों से निकाह करना चाहिए। जी जी तो जी उनके जी खिलाफ बिल्कुल। देवबंद वाले ही भड़क गए वहाँ के पाकिस्तान में। अब बताएं, ये देखें तंग नजरी। तंग नजरी है भाई, जो उन्होंने मुफ्ती अखून साहब ने बहुत अच्छा मुफ्ती अखून मुहक्किकाना। साहब का ट्वीट मुफ्ती अखून साहब का ट्वीट आज भी मेरे पास महफूज है अतर साहब, अगर नहीं चाहिए होगा उन्होंने तो। क्या है बहुत तहकीकी और तत्बीकी जवाब दिया है, ये एक तरफा जवाब जी, नहीं दिया उन्होंने। एक तरफा जवाब नहीं है उन्होंने उनका, तो बड़ा कुफ्र की जबरदस्त जवाब किस्में और फिर गुस्ताखियों के मामलात में सब कुछ बताया, बहुत सारी बात। है। जी जी तो जी जी। मुफ्ती अब आजम बताएं। अमरीका इस वक्त दुनिया के अंदर मशहूर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा फतवा दिया कि इसे कलमा शहादत पढ़ना चाहिए जी और बिल्कुल। इसे जो है कि दोबारा 4 बीवी से निकाह करना चाहिए। और यकीन जाने अतर साहब, बड़ी हैरानी हुई मुझे ये चीज देखकर, बात जोहला ही है वो, हाँ क्योंकि आलिम तो जो हैं वो तो कोई सही नहीं कहेगा गलत बात को, सही बात। कोई भी हो। क्योंकि जैसे मैंने मिसाल दी, और अखून साहब का आपने खुद ने सुना भी है, पढ़ा भी है, वो क्या क्या लिख रहे हैं। बाज जोहला जो है ना, इनकी दिफा में लगे पड़े हैं आप आज भी। इनकी तारिक मसूद वो तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब। इंडिया में तो नहीं है ज्यादा, इक्का दुक्का ही होंगे, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ जो इसकी दिफा में लगे हैं कि अगर कोई इनकी बहन को तारिक मसूद छेड़ दे इसके सामने, जिना न करे, फिर अपन चल के कहेंगे यार मान जाओ यार उसने जिना थोड़ी किया है, थोड़ा बहुत छेड़ाई तो है, पकड़ के हाथ पकड़ के जी ही तो मसला है उसका है। जी 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 हाथ पकड़ के तारिक मसूद जो भी इसका फेवर कर रहा है छेड़ छाड़ के और टूटों पे लात दे के अगर उसके गोद में गिरा दे तो क्या माफ कर देगा? माफ कर देगा, बताएं। और उसने कितनी बड़ी, अच्छा एक चीज गौर करने की है, मैंने इस पर गौर किया अतर साहब। तो पहली बात तो ये जो कलामुल्ला हमारे पास है, लोहे महफूज पर भी ऐसा ही है। ये बताओ कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। कोई तब्दीली नहीं होगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1400 साल के बाद इसने शोषा छोड़ा है कि साहब वो गलत लिख दिया गया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम भी नहीं था। हाँ, उन्होंने सही भी नहीं कराया। नहीं फिर अल्लाह ने भी नहीं सही कराया। तो फिर अल्लाह ने भी सही नहीं कराया, मतलब तो यही जी जी जी। नहीं उसने तौबा तो उसने कर ली, लेकिन कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा। ये तौबा तो उन्होंने की है अतर साहब। नहीं तौबा तो नहीं, ये तौबा से नहीं, ये तौबा से माफ अगर नहीं होता। हुजूर का फरमान जो है वो ये है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला गुनाह से ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह न किया हो। गुनाह जो कुफ्र से कम दर्जे का हो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अत्ताइबु मिनल कुफ्र कमल्ला कुफ्रला, तौबा करने वाला कुफ्र से ऐसा हो जाता है जैसे उसने कुफ्री न किया। जबरदस्त अतर साहब, जबरदस्त है ना। बहुत खूब। गुनाह के बारे में कुफ्र से कम दर्जे का गुनाह है वो तौबा से माफ हो जाएगा। जी बिल्कुल जबरदस्त। और अगर कुफ्र किया है तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, बाकायदा तजदीद ईमान सब कुछ करना पड़ेगा। तो असल में मसला तो ये है ना अतर साहब, तो अब एक हो तो आदमी कर भी ले, 4 जा रहे हैं ना, मसला ये भी तो। अब वो चारों से करे निकाह दोबारा से, चारों को अगर उसकी बीवियां चारों ईमान वाली हैं तो वो इसके पास अब जाए नहीं, बुलाए जब भी न जाए कि दोबारा से कलमा पढ़ो मुसलमान हो। चल यहाँ से मुझे ये साजिद खान नक्शबंदी साहब की एक पोस्ट थी इब्तिदा की, मैं आपको बताऊं, और मुझे हंसी भी आई और मुझे जो है ना इस चीज को समझ भी आई ये बात जो उन्होंने कही थी। साजिद खान नक्शबंदी साहब, आपने नाम सुना हुआ उनका? मैंने अभी ध्यान नहीं आ रहा वो कहाँ के हैं। अरे ये देवबंदी जमात से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, बड़े उनके
मुनाजिरों में शुमार होता है उनका। अच्छा, साजिद खान नक्शबंदी, हाँ हाँ होंगे सही, वो ध्यान में नहीं अभी। जी जी। वो तो क्या इनकी फरमाया, जब उन्होंने पोस्ट क्या आई, फरमाया? हाँ हाँ, उन्होंने पोस्ट करने के बाद आखिर में 2-3 जुमले लिखे। क्या? कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब शादियों के स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्हीं पर खिताब करना चाहिए। अच्छा। नहीं, मेरे उसके पास है चेहरे पे, स्क्रीनशॉट भेज। नहीं आप उसका चेहरा देख लो, एकदम मस्त खुशनुमा बेरोनक हो चुका है। अच्छा, हो ही जाएगा ना। देखें, ये एक चीज बताना, अतर साहब जब इनका ये बयान आया था तो नॉन मुस्लिम ने जो है हाथों हाथ ले लिया था इनको, इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हाँ गैर मुस्लिम के ने, आप ट्विटर पर देखें कितने सारे ट्वीट आपको मिल जाएंगे, हजारों की तादाद में। हाँ इन्होंने मौका दिया बोलने का तो उन्होंने उंगलियां उठाई कलामुल्लाह पर। हाँ सही। और दूसरी बात ये है कि ये चेहरे पे मेकअप बहुत करता है। तो देखें यार, फिर कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान के तो मैंने उलमा देखे ही हैं, दोनों ही तरफ के, देवबंदी बरेलवी दोनों ही जी मेकअप जी, करते हैं। वो असल में वीडियोग्राफी का मामला रहता है ना उनका, इसलिए फुल मेकअप में रहते हैं वो। हबीब अत्तारी कितना मेकअप करता है, हबीब अत्तारी हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ भाई। कितने मेकअप में आता है। लेकिन अच्छा अच्छा, ये करना क्या चाह रहे हैं ये लोग, मुझे ये समझ नहीं आती। मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये कमल अमेरिकन एजेंट है, ये लोग क्या है, अल्लाह जाने, बिक गए हैं या पैसा दे दिया इनको कि ऐसा कह दो। हाँ जी जी। अभी तो एक मसला और चल रहा है, मैं आपको बताऊं, मेरे उनसे 22 मुबाहिसे चल रहे हैं। ये आपने नाम सुना होगा मौलवी फजल अहमद चिश्ती का, पड़ोसी मुल्क का ही है वो बंदा भी, क्या कहें? पड़ोसी मुल्क का ही है वो आज। हाँ वो तो चिश्ती पे तो अजीब अजीब बातें करता है, कुछ समझ में नहीं आता वो। हाँ अरे यार बताएं, वो तो ये कहते हैं, उसके हवारियन कहते हैं जो स्कूल में गया एक दिन के लिए भी, हाँ एक दिन के लिए भी पढ़ने गया स्कूल में, वो भी काफिर, उसको भेजने वाला भी काफिर, ये भी काफिर, बताएं। वो तो पागल हो गया है। मेरे 3 मुनाजरे हो चुके, अभी पागल हुआ है वो। मेरे 3 मुनाजरे हो चुके हैं उन लोगों से। मैंने कहा यार कैसे जाहिल हो तुम लोग भाई, अभी पागल हुआ है वो। अरे इतना बताएं, इन्होंने कुफर को इतना सस्ता कर दिया है, बताएं यार, कोई स्कूल चला गया तो यार वो कैसे काफिर और हो वो गया काली भाई? दाढ़ी करता है, खिताब लगाता है। हाँ वो खिताब लगाता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े आप। वो मामूल बेगैरत है। हाँ हैं? बिल्कुल इमाम लोग गैरत कहते हैं, लेकिन गैरत बिल्कुल जरा भी नहीं है उस बंदे मामूल के अंदर। बेगैरत है, बेगैरतों का इमाम है। अरे वो तो क्या किया जाए, बस अल्लाह हिफाजत फरमाए, बस और अल्लाह बताएं। हिफाजत फरमाए। न पे अरे तो बड़े में बोलने वाले बहुत कम हैं। जी जी, एक कमरुज़्ज़मा आदमी है जो अभी तक सही चल रहा है। ये भी कभी कभी जो है ना ऐसे ही कर जाते हैं अतर साहब, ये चीज आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, जी कमरुज़्ज़मा देखिए, साहब हमने को सुना तो नहीं है। अतर साहब देखें एक चीज जानना है, हमने देखें कलमा मोहम्मद अरबी नबी पाक अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, हम मानते जरूर हैं आला हजरत को भी, लेकिन कलमा हमने उनका भी नहीं पढ़ा है। सही बात, क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। हम मानते जरूर हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, लेकिन कलमा उनका भी नहीं पढ़ा। अभी हमने 11वीं शरीफ मनाई है वो से पाक की, कलमा हमने उनका भी नहीं पढ़ा। सीधी बात है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई देखें, कोई भी हो, कोई आलिम है अपनी जगह है, लेकिन बात अगर शरीयत के मुताबिक करेगा तो ठीक है, कोई भी हो, समझे। और अगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात है तो भाई हम नहीं मानते इसको, और हम तो उसको आलिम मानने के लिए तो तैयार नहीं है, अगर वो इस तरह की बकवासात करे तो। अहले सुन्नत में अगर जिम्मेदार थे तो मुफ्ती आजम हिंदी थे, उनके बाद दौर खत्म हो गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वो का तो तो स्टेज दौर पे ही टोक देते थे, तौबा करवाते थे, कोई उनके सामने वो किसी की बकवास नहीं करता था। आजाद कौन थे, फसी गाजीपुरी था, कौन थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका, फसी ही गाजीपुरी थे वो। जी जी, नाम उनका कुछ और है, फसी ही लिखता उनके आगे, फसी ही गाजीपुरी। जी क्या वाकया बयान करें, शायद मेरे ज़हन में आ जाए उनका नाम। जरा मिसाल दे दीजिए, हवा से कोई तोशी पे उन्होंने रुजू करवा लिया था मुफ्ती आजम। हाँ जैसे कि उनका बयान आया था हवा के मुतालिक, बड़ा विवाद चला था, और इनका महमूद मदनी साहब का, नहीं अरशद मदनी साहब का। हाँ वो तो जाने क्या कहा, नहीं वो हवा के बारे में फसी ही गाजीपुरी ने कुछ कह दिया था, जरा सा हल्का सा कुछ नहीं, किसी चीज के बारे में कहा था तो आपने रुजू करवाया। उलमा की शान ये होती है ना, जब तुम स्टेज पर बैठे हो और आप ही के सामने कोई इस तरह की बात कर रहा है तो एक आलिम की शान वजील्ला जो थे ये उनके सामने तकरीर थोड़ी कर पाते मुफ्ती आजम उनके जमाने में। अच्छा जी, यानी क्या तो हर कोई बख्तर का कायदा कहता था, ओम को ऐसे देखो तो अली है, ऐसे देखो तो ओम है।
भाई रजीउल्लाह, ये कारी रजीउल्लाह कौन? ये बिहार के थे, चतुर्वेदी के इलाके से। कारी रजीउल्लाह चतुर्वेदी, या रजीउल्लाह तो नाम नहीं है, लेकिन एक तो थे चतुर्वेदी जिनका इंतकाल हो गया कई साल पहले बयान करते हुए। वही थे उनकी बात भाई, कर रहे हैं? वही भाई रजीउल्लाह। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, दौरान तकरीरी उनका विशाल हुआ था ना, इंतकाल हुआ था। हाँ वही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो तो एक तो जो है कि ऐसे जिम्मेदाराना अल्फाज तो बोलते नहीं थे आमतौर से। हाँ, गैर जिम्मेदाराना अल्फाज का इस्तेमाल खुतबा को करने भी नहीं चाहिए, और आजकल तो ऐसा बाजार गर्म है भाई। अब खतीबों में किसे कहा जाए कि ये जिम्मेदार हैं? बहुत कम ही जिम्मेदार हैं अब तो। वही मुझे भी नजर नहीं आते, देखने पर साहब, सीधी बात है। मैं भी बहुत बुला चुका, इतने मैंने मुकर्रिर बुलाए, आपको यकीन होना चाहिए कि 20 मुकर्रिर मैंने जो बुलाए दुनिया से रुखसत हो गए, इतने आलिम बुला चुका। अरे अब मैं आप तो नाम खुद बताऊं खतीब कितने कितने बुलाए जो इंतकाल कर गए, ताकि आपको एक सूफी निजामुद्दीन साहब का नाम सुना, अमर ढोबा वाले? जी 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 जी, उनका नाम सुना है। वो इंतकाल हो गया। हजरत मौलाना गुलाम मोहिद्दीन सुबहानी, वो भी जिम्मेदारी बोलते थे। जी जी, सुबहानी साहब का इंतकाल हो गया। मौलाना फैज अहमद फैज, सुबहानी साहब तो शायद हयात हैं अभी, नहीं इंतकाल हो गया सुबहानी साहब का। नहीं यार, वाकई में खिताबत, उन्हें मैं कहता हूँ वाकई में खिताबत का ढंग बंदे को फन था। नहीं, नंबर 1 खतीब थे आज के दौर के। हाँ, बिल्कुल, उनके उनसे हासद भी बहुत रखते थे लोग। नहीं, अगर देखा जाए शोला बयानी में उबैदुल्लाह खान आजमी थे, और सीरत के ऊपर तकरीर करने में गुलाम मोहिद्दीन सुबहानी थे। सुबहानी साहब बड़े मशहूर और मारूफ। उन जैसा मुकर्रिर नहीं था साहब हिंदुस्तान में। जी जी, वो नफतुल्लाह भी बोलते थे और जिम्मेदारी समझते थे। अरे वो सीरत रसूल, उनका खिताब सुनो कितने घंटों पर मुश्तमिल है, आज भी बड़ा मशहूर और मारूफ है वो। नहीं, फिर वो सलासत में तसलसल भी था, रुकते नहीं थे, तसलसल था। हाँ, और लंबी चौड़ी बात नहीं करते थे, दोहराते नहीं थे। बस ये जैसे आजकल मुकर्रिर एक एक बात को 10 बात करके ले जाते हैं ना इधर से उधर। जी जी जी, सुभान अल्लाह कह दो, तो मैंने उनको भी बुलवाया। और अंटाफिल से हजरत मौलाना फैज अहमद फैज अंटाफिल के इमाम थे, उनका इंतकाल हो गया 3। और मुफ्ती मालवा जो इंदौर के थे, हबीब यार खान साहब 4। हबीब यार खान साहब जी। और जो है कि यानी मुझे अब याद आते जाएंगे तो बताऊंगा, लगभग 20 इंतकाल कर गए, इतने आलिम बुला चुका मैं। अब मैंने बुलाना ही बंद कर दिया, कि छोड़ ही दिया कि यार ये तो अब गैर जिम्मेदार मिल रहा है, क्या बुलाए इनको। अरे आप भी तो एक वक्त था बहुत बड़े खतीब थे, बड़े बड़े प्रोग्रामों में, इजलास में आपकी शिरकत हुआ करती थी। ये आखिर आपका मामला ऐसा ढुलमुल क्यों हुआ अतर साहब, आज ये अरे वो यही जो बातें आप बता रहा हूँ मैं, यही बातें देख देख के कि यार क्या है तरीका ये अपना रहा है लोग। कहीं तो निजामतें ऐसी हो रही हैं कि बेतरतीब, 1-1 घंटे की निजामतें, 1.5 घंटे की निजामतें। नात पढ़ने वालों को बुलाते तो 3-3, 4-4 लाइन से नात पढ़ रहा है, और आदमी जो है कि सुनना नहीं चाह रहा है, तबीयत लग नहीं रही है, और वो पढ़े चला जा रहा है। वो कोई रोकने वाला रोक नहीं रहा कि भैया एक पढ़ लो, जितना सुन सके लोग, तबीयत से सुने, शौक से सुने, उतना पढ़ो। हैं? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उतनी निजामत करो कि लोग जितना सुन सके निजामत। अब तुम तो निजामत पे निजामत करे चले जा रहे हो, क्या तरीका है? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। नहीं, निजामत पे निजामत का क्या तरीका है साहब, ये बताइए आप। हैं? तो इसके लिए आपने अबुल हक्कानी साहब को सबसे पहले मैंने बुलाया था कॉलेज में, गुजरात। अच्छा, हक्कानी साहब, उनका भी इंतकाल हो गया, अबुल हक्कानी साहब का। जी जी जी, उनको तो मैंने कई एक मरतबा सुना। मकबूल सालिक साहब मिसबाही को भी मैंने बुलाया था वहीं पर, उनको भी मैंने सुना है, मकबूल साहब को जी। उनका भी इंतकाल हो गया। कितने मैंने बताया ना, 20 लोग इंतकाल कर गए, इतने बुला चुका। बस एक बार उनको बुलाने गए थे तो वो हजरत टाइम के नहीं होने की वजह से नहीं आया। हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब। अच्छा, मुफ्ती अशफाक साहब, वो साहब बामल आलिम थे, मुफ्ती आजम राजस्थान, हजरत मुफ्ती अशफाक साहब। अच्छा, मैं एक चीज पर गौर करता हूँ आतर साहब, वो ये है कि पहले के जो हमारे उलमा थे, बुजुर्ग थे, बुजुर्गान दीन थे, तो उनकी बातों में अगर वो खत और खिताबत किया करते थे तो आवाम संजीदगी से समाज भी करती थी और अमल भी करती थी। अमल उनके अंदर जबान में असर था और अमल वाले थे वो लोग जी। और आज क्या है, आज ये रातों दिन स्टेजों पर बोलते रहते हैं, इनकी बातों में असर क्यों नहीं होता? एक तो 20,000 रुपए तकरीर का मांगते हैं, कोई 40 मांगता, कोई 30 मांगता, कोई 50 मांगता, कोई 60, कोई क्या मालूम कितने मांग रहे हैं। ये लोग मंगोड़े हो गए, भिखारी हो गए। हाँ, ये बात तो हकीकत है। एक तरफ आला हजरत का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ आला के फतवे की तरदीद करते हैं मतलब के लिए। माइक से कहेंगे नमाज नहीं होगी और अपना तकरीर का पैसा जायज कर लेंगे, अपना पैसा जायज कर लेंगे। वो हालत में हराम लिखा है कि तय करना नाजायज हराम।
और उसको भी तय करते हो, फिर कहते हैं कि पहले अकाउंट में डालो और फ्लाइट की टिकट दो, नहीं, फिर क्या रिटर्न कहेंगे की। वो हालत ने लिखा है नाजायज हराम, वो उस वक्त के हिसाब से, और ये है वो है, जाने क्या क्या हो, तो बस यही मान लो कि मुफ्ती आजम का फतवा भी उस वक्त के हिसाब से नाजायज है। हम भी मानते हैं कि नाजायज था उस जमाने में, 50 साल पहले। 50 साल पहले। 50 साल पहले न ट्रैफिक था, न ये था, न वो था, तो हम भी मानते हैं वो सही था फतवा। जी जी जी। आपको भी मालूम होगा 30 साल पहले जब आप तरावी पढ़ाते होंगे तो आपकी आवाज लोग दूर दूर तक सुन लेते होंगे बगैर माइक के। जी बिल्कुल, बगैर माइक के। अब लेकिन माइक आज से शोर नहीं, अब शराबे हैं। माइक से नहीं सुन सकते उतनी जगह की आवाज। हाँ, वो आज शोर शराबे ज्यादा है ना रोडों पर। आप ये तो मुफ्तियान का फतवा बिल्कुल सही था उस जमाने के हिसाब से। जी जी जी। लेकिन उस अब ये जमाने तो में भी फिर इख्तिलाफ मसला हो है। गया था। मुफ्ती सैयद अफजल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती जी जी जहांगीर जी साहब, ये जी जी उस जी। जमाने में भी हाँ फिर, इख्तिलाफ कर रहे थे। हाँ तो फिर इख्तलाफ हुआ था तो फिर उन्होंने रिव्यू भी कर लिए थे। नहीं, मुफ्ती आजम का फतवा ही सही था उस जमाने में। उस जमाने में जी जी जरूरत नहीं थी ना, ट्रैफिक भी नहीं था, न ऐसी जरूरत थी जी जी जमाने में। जी जी। अब लेकिन तो अभी क्या हो गया, अतर साहब, इन फुरूई मसाइल को उठाकर बड़ा शब्द से काम लिया जा रहा नहीं, अब तो जरूरत है ना। उलमा ने लिखा है कि मल्लम यारिफ आले जमानी फो जाहिल, जो जमाने हालात जमाना को न समझे वो जाहिल। है। बिल्कुल। तो तब्दीली आती है ना, फतावा में आती है तब्दीली के, जब हाँ हालात बिल्कुल कैसे तब्दीली हैं। आती है। अब बिल्कुल। मैंने एक और दलील दिया इस पर कि जो मुफ्तियां के जमाने में सिंगल मस्जिदें थी, हमारे ही जमाने में थी, तो मुफ्तियां के जमाने में तो वैसी सिंगल ही थी। जी 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 आपने भी देखा वो सिंगल मस्जिदें ही थी आज से 35 साल पहले। जी जी, मेरे गांव में खुद सिंगल ही थी। अब तो हर जगह डबल टेबल और 4-4 मंजिल हो रही जी हैं। जी तो जी मैंने जी कहा जी। ये बताओ, जो आदमी तीसरी मंजिल पे तरावी सुन रहा है, दूसरी पे सुन रहा है, और पहली मंजिल में वो गर्मी के दिनों में तो चौथी सफ में भी आवाज नहीं आएगी, पहली मंजिल में भी, पांचवी में भी नहीं आएगी, छठी में नहीं आएगी, मुश्किल से। कूलर जी पंखे इतने हो गए हैं, तो जब फिर पहली मंजिल वालों को आवाज नहीं आई, तो जो तीसरी भरी पड़ी है, दूसरी भरी पड़ी है रमजान में, उनका क्या होगा? लगातार 1 महीना कैसे तरावी सुनेंगे वो बगैर माइक के? जब तुम कह रहा माइक से नमाज नहीं हुई, तो बेचारे कैसे खड़े रहेंगे 1-1 घंटा, 3-1.5 घंटा वो? तो नहीं मैंने नहीं इस पर ये बिल्कुल दलील दिया। मैंने सुनो, मैं क्या, हुजूर का फरमान है ला सलाता इल्ला बेहुजूरिल कल्ब, की नमाज नहीं होती अब तक कि दिल हाजिर ना हो। बिल्कुल तो ठीक, अगर दूसरी जबरदस्त। मंजिल वाला, तीसरी मंजिल वाला माइक से तरावी सुनेगा तो उसका दिल तो लगेगा कि हमारा इमाम पहला पारा पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है। हम्म। और आप कहते हो नहीं नमाज नहीं होगी, तो दूसरी तीसरी मंजिल वाले तो न जाने कहाँ घूमेंगे आलम तसव्वुरात में। हाँ बिल्कुल, आलम में तशव्वुर आदमी घूमेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक बम्बई है। जाएगा, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास, सोचेगा कि अब पढ़ रहा है इमाम, हमें क्या मालूम क्या पढ़ रहा है। हमें क्या मालूम। अब तो मुफ्तियान का नहीं, फतवा लिए घूमते रहो कि वो मुफ्तियान का फतवा है, तो मुफ्तियान का फतवा तो सही था उस जमाने के हिसाब से था। जमाने के एतबार तो से इमाम बिल्कुल। आजम का भी तो फतवा ये है कि जो दर्स तदरीस करे उसका पैसा लेना जायज नहीं है। तो अब उसे जायज क्यों बना लिया? बात के उलमा ने जायज करार दिया ना। और यहाँ तक के फतवा तो आइमा फुकहा का कि ये तरावी की नमाज जो पैसे लेते हैं ना तरावी पढ़ाने अरे के, ये तो इसको भी कानून नाजायज शरीफ करार। में लिखा, काजी शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जी जी बिल्कुल, कि ये मैंने खुद लिखा पढ़ा है है। कि अगर कोई इमाम ये मालूम हो जाए हाफिज इस नियत से तरावी पढ़ाने आता है, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो लिखा है कि मुक्तदियों को चाहिए कि वो अलम तरह से नमाज पढ़ लें, उस हाफिज के पीछे न पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अब 99% हाफिजों का यही विचार है कि मुझे बम्बई में इतना मिलेगा, अहमदाबाद में इतना, सूरत में इतना। अब मसला तो ये देखें, अतर साहब चाहें और देखें, देवबंदी बरेलवी दोनों खुद हनफी हैं, हनफी और मजहब कहलाते हैं। हाँ सही बात है। और ये चीज मैंने देवबंदी की उलमा की कुतुब में भी पढ़ी है। मैं अपनी पढ़ी हुई बात कर रहा हूँ, मैं सही किसी की सही बात सही नहीं बात, करता था साहब। सही बात। और उलमा बरेलवी ने भी लिखा है ये तरावी के इमाम के मुतालिक। लेकिन दोनों जमातों में देख लो, चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, नजर उसकी ये रहती है कि भाई आप कितना जो मामला रखते हो तरावी के बाद में ये बता दो इमाम साहब को कितना हदिया देते हो। हाँ यार ये क्या तरीका आया है। हाँ, अब तो पूछ लिया जाता है, पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं, हैं? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात, कानून शरीयत में साफ लिखा है उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो अगर तुम माइक से कह रहे हो नमाज नहीं होगी, तो उस हाफिज के पीछे भी तो नमाज नहीं होगी, बगैर माइक के नहीं होगी, उसके पीछे तो बिना माइक के भी पढ़ा जब भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, बिना माइक के पढ़ा दे जब भी और नहीं होगी। कौन हाफिज है बिल्कुल जो आज इस नीयत से जाएगा कि नहीं मुझे मत देना, मुझे तो जो चाहो दे देना, इस नीयत से भी नहीं जाएगा वो तो आजकल आमतौर से। यार, हमारे यहाँ अहमदाबाद में चार थोड़ा मस्जिद है ना, बहुत कम लोग अतर जो हैं साहब। जो जाएंगे कि साहब जो चाहो दे देना, बहुत कम लोग होगा। जी जी जी, मैं बताता हूँ आपको। ये चार तोड़ा का प्रस्थान है ना, आपने हाँ, देखा ही होगा सरसपुर के पास में। आया हूँ मैं अहमदाबाद। हाँ काफी। जी, तो यहाँ पर एक मस्जिद है। तो यहाँ के चार तोड़ा के एक इमाम साहब हैं, इनके अंदर मैंने ये चीज़ नोट की है। हाँ हकीकत बात है, इनको सूरत में खिताबत के लिए मदद किया गया, वहाँ के लोगों ने इनको बुलाया, हाँ समझे। कोई इन्होंने तय नहीं किया और ना ये करते हैं आज तक की बात बता रहा हूँ मैं इनकी, हाँ, सही बात। समझे।
تو وہاں کے لوگوں نے ایسی لفافہ بنایا اور ان کو دے دیا, ہاں سمجھے. ہاں اب لفافہ بنایا ایسی دے دیا, اس میں 100-200 روپے ڈال کے اور انہیں ٹکٹ بنا کے دے دی ادھر کی ریٹرن. اچھا ہاں سمجھے. بیچارے لے گئے. اب یہ آ گئے اپنے گھر, آ کر کھول کے دیکھا کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی, کچھ نہیں کی. اب انہوں نے جانچ لی تھی نا جنہوں نے بلایا تھا, ہاں ہاں انہوں نے فون کیا کہ حضرت آپ پہنچ گئے, کہ ہاں پہنچ گئے, کہ سفر کیسا رہا, وہی حال چال وغیرہ لیے, کہ یہ بات چھیڑیں امام صاحب کہ یار آپ نے مجھے کتنے دیے تھے لفافے میں ڈال کر. ہاں انہوں نے ذکر تک نہیں کیا, اچھا سمجھے. ہاں ہاں پھر مجبور ہو کر ان لوگوں کو کہنا پڑ گیا کہ حضرت اچھا آپ ناراض تو نہیں. بولے آپ یہ, انہوں نے پھر جواب دیا کہ اگر آپ یہ بھی نہیں دیتے تو میں کبھی ذکر نہیں کرتا, میں اللہ کی رضا تو وہ ایسے بہت کم اکا دکا ہی لوگ ہیں ایسے. اور پھر کیا ہوا, پھر وہ لوگ واپس آئے اور آ کر انہیں کچھ اور زیادہ کر کے دیکھے گئے. پھر آ کے کہہ رہے حضرت ہم آزمانے کے لیے یہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نہیں لیتے, تو واقعی آپ کا عمل بھی ہم نے دیکھ لیا. ہم نے مولانا نظام الدین صاحب کو بھی بلایا جو براؤں کے تھے, انتقال ہو گیا ان کا, بھی جوان تھے, جی جی وہ تقریر میں مشہور تھے. اور صوفی نظام الدین صاحب وہ الگ تھے. جی اور حامد صاحب اندور کے, ان کو بھی بلایا میں نے. جی جی یعنی میں نے بتایا نا 20 عالم انتقال کر کے کم بھی جتنے عالم بلائے. جی جی پھر میں نے چھوڑ دیا کہ یار اب کیا کرنا, کوئی عمل والے عالم بھی نہیں مل رہے ہیں, کیا کیا ابھی جائے تو بتائیے آپ. عمل کیا رہ گیا ہے, ابھی تو شور گل رہ گیا شیروں پر بھی, اور اختلاف کو بڑھاوا دیا جاتا ہے شیروں پر بھی. اب بتا بلا دوڑنے وجہ والی بات بھی. کوئی اگر ایک عالم کہہ دے گا یہ ذبیحہ جائز ہے, ایسا جائز ہے, تو اس کے پیچھے پکڑ لیتے ہیں, جبکہ وہ قیود اور شرائط لگا کے بتا رہا ہے, اس کے بعد بھی پیچھا کرتے ہیں. کوئی مطلب یہ پارٹی بندی چل رہی ہے بہت زبردست, کہ وہ ایسا بتائے گا تو ہمیں ایسا بتانا ہے. کیا ابھی خیال وہ ہے مسئلہ صاحب؟ ہے, بالکل ابھی مسئلہ ایسے ہی ہو گیا ہے کہ بھائی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی اشفاق صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ شخصیت تھے, وہ صاف دل آدمی, جی 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 وہ ان کو ان اختلاف سے کوئی مطلب نہیں تھا, وہ بہت فکر مند رہتے تھے ان اختلافوں. نہیں, یہ تو فروئی معاملات میں جو اس طرح کا اختلاف انہوں نے اوپر کھڑا کر دیا ہے, اور ایسے فتوی بازی اور ایسا رد ایک دوسرے کا, تو یہ تو کہیں تک درست نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. ارے بلا وجہ رد کرنے لگ جاتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ آدمی کو پاگل بنا دیں. اور اس وقت تو ہندوستان میں دیکھو کہنے والی بات نہیں ہے سر صاحب, 2-3 شخصیت ہیں ایسی اس وقت, جیسے ایک تو خود سید مدنی میاں حافظ اللہ ہیں. ارے کیا بات ہے, جی اس زمانے کے محقق ہیں, وہ محققوں کے محقق ہیں, بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کے اندر سنجیدگی بھی ہے, بردبازی بھی ہے, بالکل علم بھی ہے, حلم بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہے. علم اور حلم دونوں ہونا ضروری ہے, اگر علم ہے حلم نہیں تو بیکار ہو جاتا. نہیں, دونوں ہیں ان کے اندر, علم بھی ہے حلم بھی ہے. ہاں ہاں اور دوسرے ہیں, حالانکہ چند کی چیزوں میں علماء بریلی ان سے اختلاف کرتے ہیں, مفتی نظام الدین مبارک پوری, ہاں ہاں وہ بندہ بھی دیکھیں, گھر سے چند جو فتوے جو ہیں ان کے, وہ بھی میں بھی ان پر عمل نہیں کرتا, میں ان کو درست نہیں سمجھتا جو بات ہے, لیکن علم ہے بندے کے اندر, یہ مانتا ہوں. محقق ہیں مفتی نظام الدین صاحب, ہاں مفتی نظام الدین, بہت اٹھتے ہوئے محقق ہیں صاحب, جی میں بتاتا لیکن رہا ہوں. اگر یہ وہ حافظوں کے کٹ گھرے میں آ چکے ہیں. حافظوں کے اصل میں ہوا کیا ہے, یہ فروئی اختلاف جو ہے نا ہماری بڑی بڑی شخصیتوں کو لے ڈوبا. ارے صاحب یہ فروئی اختلاف, کیا کیے جائے, بس اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے, ہیں یہ فروئی اختلاف تھا. فروئی اختلاف اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ آدمی کا جینا مشکل ہو جائے, بس ایسا ہی ہے مسئلہ, جینا مشکل ہو جائے, ایسے ایسے اختلاف کر دیے. حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کو بھی ہم بلا چکے ہیں. ارے تطہیر صاحب یار کیسے سنجیدہ بندہ ہے وہ, بتائیں. اب ان پر بھی کفر کے فتوے ٹھوک دیے ان لوگوں نے, یار بتائیں. وہ تو یہی ہے, پیلی بھیت یہی پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے, تو نہیں وہ تو حضرت مولانا تطہیر صاحب کے خالی اکیلے پیلی بھیت کے والے مخالف ہیں, باقی لوگ نہیں. بتائیں, ان کی یار کو درمیانی امت کتاب بندہ پڑھ لے تو اس کو جو ہے نا 14 طبق روشن ہو جائیں. آپ نے تو پڑھی ہوگی. غلام رسول بلیاوی کو ہی میں نے بلایا سب سے پہلے للت پور. اچھا, غلام رسول بلیاوی صاحب, لیکن وہ عمل والا آدمی نہیں ہے, وہ تو بے لگام آدمی ہے, وہ سیاسی آدمی ہے وہ, اور وہ جو پہلے ہے سے سیاست تھی اس بندے کے اندر. مختار احمد بہڑوی کو بھی ہم نے بلایا. اچھا, فقیر جوکھن پوری کو بھی بلا چکے انصافی پور میں.
लेकिन जब तक अमल वाल, हाँ मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को ही हमने बुलाया, उनका भी इंतकाल हो गया। अब्दुल हलीम साहब, ये दावत इस्लामी से जो हाँ मामला था इनका, हाँ, उनको ही बुलाया था हमने। नागपुर वाले। हाँ, सबसे पहले मैंने बुलाया सफीपुर में, इंतकाल हो गया उनका भी। अच्छा अच्छा, हाँ, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, मुझे याद आते जा रहे हैं, बता रहा हूँ ना कैसे कैसे आलिम बुलाए मैंने। हजरत बहुत मौलाना बड़ी- कारी अहमद रियाद हरी, जो सबसे बड़े कारी थे हिंदुस्तान के, जी जी, उनको भी हमने वहाँ सफीपुर वो आए थे, हमने बुलाया, जलसा किए थे, तो हमारे साथ वाले उनको इनवाइट किए थे। उनको तो खैर मैंने नहीं सुना है, लेकिन मुझे अफसोस यही होता है अतर साहब, इतने बड़े आलिमों से आपका राब्ता रहा, इनके रास्ते में आप रहे, उनके इजलास जुलूस खत व खिताबत में आप शरीक रहे, तो ये मिजाज आपका कैसे तब्दील हो गया? कुछ बदला सा जो आपका मिजाज नजर आता है, कुछ इसकी क्या वजह है? गुलू के मामले ज्यादा ही हो गए थे। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। तो दीन में तो गुलू नहीं किया जाता, जितना ना ही कोई करता। जिसका जितना मर्तबा है उसी हिसाब से उसको मानो। बिल्कुल ठीक है, जिसका मर्तबा है। बिल्कुल ठीक। खुद फाजिल बरेली ने कहा कि मेरे बारे में 2 झूठी करामतें मशहूर हैं, जी, और जी, हजरत शेख फजल रहमान साहब गंजबरादाबादी के बारे में भी ऐसी मशहूर किया गया था। जी, जी, वो ऐसे वो ताजिए के मुतालिक, तो ऐसे बहुत से वाक़यात जो गुलू पर मबनी है, झूठ पे झूठ लोग बोल रहे हैं और गुलू पर गुलू कर रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, हमारे अकाबिर रोक नहीं रहे, जो मरकज है वहाँ से लगाम लगानी चाहिए, वहाँ से कोई लगाम नहीं लगता। अभी देखे ना हुजूर सैयद जैसे आप कोई बात अगर जलसे में कह दोगे तो आपकी बात नहीं रह जाएगी उसी महल्ले तक, और मरकज का आदमी कहेगा तो बात पूरी इंडिया में फैल जाएगी। हाँ बिल्कुल, पूरी तो भाई लगाम तो मरकज से लगाई जाए ना, तो मरकज से क्यों लगाम नहीं लगाई जा रही? हाँ, अभी देखे ना वो कितना गुलू किया गया था इनकी तरफ से, क्या कहते हैं ये नागपुर वाले जो हैं सैयद साहब। अच्छा, हुसैनी मियां? नहीं, हुसैनी मियां नहीं, अब्दुल कादिर, अरे अमीनुल कादरी साहब। अरे हाँ, मालेगांव, कितना कदर गुलू करता है वो बंदा। हाँ, मालेगांव वाले। जी, ऐसा है कि चांद आकर गौसे पाक से पूछता था 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं। समझे? तो ये गुलू जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के इफ्तार करो। हदीस है सूमू ले रोयती ही वाफ्तिरू ले रोयती ही। कुरान में फमन शाहिद मिनकुम शहर फलियसुम। कुरान में शम्स और कमर व हिस्बान, सूरज और चांद अल्लाह के हुक्म से हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन इस अमीनुल काजी पर एक फतवा नहीं है साहब। मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने इतना सख्त फतवा लगाया, लेकिन लोग उसको भी नहीं मान रहे। हाँ, फतवा लगाया था तो उसके बाद इन्होंने, आप पता नहीं अल्लाह जाने, तौबा तो की थी, लेकिन इनकी तौबाएं पता नहीं कैसी है। तौबा क्या है, ये तो एक नाटक करते हैं तौबा का, फिर वही काम करने लगते हैं। जी 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 जी। नहीं, ये बताओ, आप तौबा करो फिर वही काम करो, तो वो तो बात में तौबा, तो ये तो इस्लाम का एक मजाक बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो हर कोई कह देगा हमने हर कुछ बक दिया, तौबा कर लिया, रुजू कर लिया, नाटक कर लिया तौबा का। तौबा कर ली, लेकिन इनकी वही तो इनकी कैसी तौबा है जो अल्लाह की बारगाह में कुछ कबूल ही नहीं हो रही। कबूल नहीं हो रही। दूसरे पब्लिसिटी के आधार पे लोग अमीरुल काजी को बुला रहे हैं बस। हाँ, बस और कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बात ये जिम्मेदारी तो उलमा की है ना, वो सख्ती से मना करें कि नहीं अमीरुल काजी नहीं आएगा जलसे में। अरे उलमा मना कर रहे हैं अतर साहब, आपने सुना भी होगा। कर तो रहे, लेकिन अवाम नहीं मान रही। अवाम इतनी हड धर्म हो गई है भाई, अवाम नहीं सुन रही, आलिम होगी आजकल, कहाँ सुन रही है अवाम? बताओ। अब बताइए, जब अवाम ही नहीं सुनेगी तो क्या किए, आलिम क्या करें? अब बताएं क्या करें इस अवाम का। और अमीनुल काजी की तकरीर से कोई फायदा नहीं है सिवाय चीख पुकार से। चीख पुकार। भाई फायदा तो जब होगा ना जब बंदा बात ऐसी करे। और देखें, मैंने अभी इफ्तितार में बात की थी कि इनकी बातों का असर क्यों नहीं, क्योंकि ये बेअमल लोग हैं, खुद अमल नहीं करते। जैसे मैं समझता हूँ कि मौलाना शाकिर रज़ी साहब वो जरा जिम्मेदाराना तकरीर करते हैं। अब वो बंदा सही है यार, वो जिम्मेदार आदमी है। नहीं, वो फालतू बात नहीं करते, वो मोहताज तरीके से तकरीर करते हैं। जी। और वो आलिमाना तकरीर, आलिम तो नहीं लेकिन आलिमाना तकरीर करते हैं। आलिमाना तकरीर करते हैं। तकरीर ऐसी करते हैं कि कोई पकड़ ना हो, और बहुत मुहज़्ज़बाना अंदाज होता है, और चीख पुकार भी नहीं होती है, बहुत मोहताज तरीके से बोलते हैं वो। देखें, मुफ्ती तफीर साहब कहते नहीं है कि कोई सुने ना सुने, ये क्या चीख पुकार लगा रखी है आजकल स्टेजों का। तो कहते हैं कि कोई सुना ना सुने, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह की मखलूक भी सुनेगी, संजीदगी से बात कर। हाँ। तफीर साहब ये नसीहत करते नहीं है। हाँ, हज़रत अली अहमद सिवानी साहब को हमने बुलाया सबसे पहले वहाँ पर गुजरात में। अच्छा। अली अहमद सिवानी साहब वही तो निजामत के मुजीर हैं। जी। वो जो आप कह रहा हो ना कैसे आप अलग होगा, तो यही सब बातें देख जाते कि यार, एक तो टखनों से नीचे पजामा पहन रहे हैं, हमारे यहाँ कोई लगाम नहीं लगा रहा, अकाबिर भी नीचे ही पहन रहे हैं, मारेरा बिलग्राम के अकाबिर जो पीर हैं वो भी नीचे ही पहन रहे हैं, तो आवाम कैसे ऊंचा पहनेगी?
ये थोड़ी कि यार तुम एक फिरके की वजह से कहो कि वो फिरका ऊंचा पहनेगा तो हम नीचा पहनेंगे, वो फिरका अगर गोश्त खाएगा तो हम गोश्त नहीं खाएंगे, ये कौन सी बात हुई है? नहीं, ये कौन सी बात हुई कि वो फिरके वाले बकरे का खाते हैं तो हम भैंसे का खाएंगे, वो अगर भैंसे का खाते हैं तो हम गधे का गोश्त खाएंगे, ये कौन सी बात हुई? नहीं ऐसी तो खैर मुझे तो लगता है ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, मुफ्ती आजम हिंद को अपने उनके देखने वालों को देखो आप, जो मुफ्ती आजम के देखे हैं वो खुद कहेंगे कि मुफ्ती आजम हिंद खुद ऊंचा पहनते थे, और आपने उनके खलीफाओं को देखा हो कभी गौर से तो उनके खुलफा भी ऊंचा पहनते थे टखनों से। जी जी, नहीं टखनों से ऊंचा ही रखना चाहिए लिबास को, ऐसा अभी इसमें क्या है यार, ये फलाना ऐसा पहनते हम ऐसा पहने। उसमें एक वो कौन है, ईसा रजवी ने, गुरसाहिबगंज वाले ने तो नीचे पहनने को जायज करार दे दिया और इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नहीं, अल्लाह के रसूल से तो साबित नहीं है, लेकिन उसने लिखा, वो फैजान आला किताब सफा 406 के करीब में है, ये लिखा हुआ। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी रिवायत है। लिबास के बयान में उन्होंने लिखा है कि ये हजरत इब्न अब्बास बल्कि खुद हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये तक लिखा उसने ईसा रज़ी को ट्राई कर। हाँ तो हो सकता है, क्योंकि ऊंचा टखनों से ऊंचा रखना भी सुन्नत है। नहीं, टखनों से ऊंचा रखना ही सुन्नत है, उसने नीचे पहनने को साबित जायज बता दिया। अब वो दलील उनकी देखनी पड़ेगी। नहीं, कोई दलील नहीं, मन घड़त दलील दे रहा, बिल्कुल बिला वजह की मन घड़त। कुछ देखे कोई बात कुछ कह रहा है तो थोड़ी बहुत तो उन्होंने दलील पकड़ी होगी अपनी तरफ से तो बनाकर रसूलुल्लाह। नहीं, आपको मैं आपको भेज दूंगा, वो सेंड कर दूंगा, आप खुद देख लेना। क्योंकि अगर कोई अपनी तरफ से बनाकर अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर रहा है तो वो उसने इल्जाम लगाया था। ठीक है, जबकि बुखारी शरीफ का बाब जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, मा जा अस्फला मिनल काबैन फिन्नार, जो कपड़ा टखनों से नीचे है वो आग में। अच्छा, फिर उसका क्या करेंगे अतर साहब? वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुस्तस्ना करार दिया गया। हजरत अबू बकर के अलावा किसी सहाबी ने ऊंचा नहीं पहना, हजरत अबू बकर का देखा देखी कि हजरत अबू बकर पहनते तो हम भी ऊंचा पहने, हम भी नीचे पहनेंगे। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल ने आपके लिए आपको मुस्तस्ना कर दिया है उस हुक्म से कि अबू बकर तुम उनमें से नहीं। अच्छा अतर साहब, इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? मैं इस 2-3 बातें अर्ज करूंगा कि मुझे और मैंने उलमा की जो तशरीहात इन रिवायात पर पढ़ी है तो मुझे ये मिलती हैं कि उस वक़्त दौरे जहालत में ये तहमत जो लोग बांधा करते थे और पीछे से घसीटते भी आती थी, इसको फक्र की नियत से वो बड़ा फक्र समझते थे इस चीज़ में। देखिए, हम तो ये जानते सुन्नत है, बस ऊपर पहनना ऊंचा। नहीं, बात ठीक है, सुन्नत है बिल्कुल, बस वो उसमें अपन वो जमाने के लोग तो पहनते थे, उनका नियत ऐसी थी। हाँ, तो वो फक्र से वो उसको घसीटते हुए लेकर आते थे पीछे से। लेकिन हमारे लिए जब सुन्नत ये हो गया ऊंचा पहनना चाहिए, बस खत्म बात। बात ठीक है। अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात लाना के साथ वो नीचा पहनते थोड़ी थे, नीचा हो जाता था, पहनते थोड़ी थे, हो जाता था। वो आपके पेट मुबारक कुछ इस तरह का था कि आपका वो कपड़ा नीचे हो जाता, पहनते नहीं थे। कोई लोग समझे पहनते थे, पहनते नहीं थे, नीचे हो जाता था। नहीं, पहनते नहीं थे, मैं खुद भी कह रहा हूँ पहनते नहीं थे, वो खिसक कर नीचे आ जाता था। हाँ, वही तो। लेकिन किसी भी सहाबी ने फिर इस तरह से अमल नहीं किया नीचे पहनने का उनके अलावा। लेकिन मसला ये है, अगर तकब्बुर की नियत से इंसान नीचे कर रहा है, अगर वो अब ये बताओ, अगर अपन यही कह रहे हैं तकब्बुर से नीचे पहनना हराम है, तो फिर किससे हम दिल की नियत जाने के तकब्बुर से पहना है? अगर तकब्बुर से सुन्नत की तालीम कैसे देंगे? वो तो अल्लाह बेहतर जानता। सुन्नत की तालीम हम कैसे देंगे भाई? ऊंचा पहनो, सुन्नत की तालीम देने का हुक्म है ना। जी जी, बिल्कुल ठीक है। फिर तो ऐसे तो फिर हर कोई कह देगा हम तकब्बुर से नहीं पहने, फिर घिसटते चलता रहेगा वो तो जिंदगी भर। अच्छा, ऊंचे से भी तो फिर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता अतर साहब, मैंने खुद ने देखी है, मैं फोटो भेजूंगा आपको। वो परिये तो कर दिया उन्होंने, इतना शॉर्ट कर दिया। नहीं, वो तो बस ऊंचा लेवल में ऊंचा रहना चाहिए, इतना ऊंचा भी ना हो कि वो पिंडी हो जाए। भाई इतना है कि नहीं, पिंडी तक भी साबित है, आधी पिंडी तक वो लुंगी मुबारक है, पैजामा नहीं है, लुंगी मुबारक है, लुंगी। अरे मैंने पजामे देखे हैं अतर साहब, आपने भी देखे होंगे। हमने भी देखे, लेकिन कम लोगों के, सबके नहीं होते, इक्का दुक्का होते हैं। अतर साहब वो कौन सी नहीं, देखो इक्का दुक्का ऐसे होते हैं तो वो नहीं, आम लोग नहीं पहनते। आम लोगों को हम भी देखते हैं, वो भी उतना ही रखते हैं, टखनों से ऊंचे ही रहता है। अब इक्का दुक्का तो देखो सभी में होते हैं ऐसे लोग, वो तो अहले हदीस है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, तरह तरह के लोग हैं दुनिया में। चलो ठीक है, अब अजान का टाइम है इंशाल्लाह। ठीक है, मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, ठीक हो गया, चलो शुक्रिया।